Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, Abhishek. So today we are going to start yield criteria. In last class, we have also discussed the von Mises criteria. Oh, sorry, the Tresca criteria. Have we completed this Tresca criteria in your class? No, sir. No, No, no. sir. Section A, no, sir. Okay, no issue. How many participants have been joined so far? 26. Okay. So first, you must know what is the yield criteria. So the yield criteria gives an idea about the yielding of the material. Now the question is, what is the yielding? So anyone would like to answer what is the yielding? Yielding is a process Sir, where, dislocation of the material when we applied a stress on materials. okay, when we apply stress, then it shows the first plastic deformation. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Plastic deformation, sir. It shows the first plastic or initiation of plastic deformation. That point is known as the yield point, and that process is known as the yielding. Okay, the yielding behavior of the material. So here we are going to study the yield criteria, means yield criteria for different materials. We would like to know how the material fails, how the material yielded by the application of load. Okay, so this is the objective of today's class. We will try to understand that the materials which yielded with the application of force. So we will calculate that condition when the failure will occur in the material. That is known as the yield criteria. So how we can define the yield criteria? Suppose someone asks to you what is yield criteria. So the yield criteria gives an information about a particular material, that where it will fails. Okay, or it gives the complete information about the material. Okay, on such stress the material start showing the yielding, or we can say start showing the plastic deformation, or we can say the initiation of plastic deformation. Okay, so in our metal forming class we have the two criteria which are important, which are related to this metal forming. Why we have chosen these two? Because we have already discussed. Anyone would like to answer why we have chosen these two criterias? One is Tresca, second is von Mises. I have explained already. Yes, sir. For what purpose? Tell me, Nandi. Sir, in we only study till this. We don't require shear stress. We are only doing for tensile stress. So, No, oh, no. sorry, we do not require tensile stress. Sorry. I have said up. Why we do not require the tensile stress? So, because so mostly it will occur in this. Uh, Wait, sir. सर जो डक्टाइल Sir, मटेरियल होता है because वो of सर शेयर स्ट्रेस की वजह से Yeah, वीक होता है. yeah, that is very Okay. weaker for in case of this shear. We don't Okay, study Harshita, it. you want to say something? Please. sir, because of the ductile and because of the brittle and ductile materials, because only the tensile and shear are used in those materials. Okay, okay. So, you know very well, you all are absolutely right. In the case of ductile materials, because in normally in metal forming, we deals with the ductile materials. Okay, you have to remember this thing. Because
the metal forming is very difficult for the brittle materials. When you apply the force, the brittle material shows the rapid failure, or we can say there will be a complete failure at the point of yielding. So in our previous class, if you remember, I have shown you the graph where we work in the case of metal forming. So we work between the yield point to the UTS point. But if the material is not capable to withstand such loading condition, so it is impossible to deform. So we are only dealing with the ductile materials. For ductile materials weak in shear. What I'm trying to say, ductile material always shows less strength when it is subjected by the shear load. So it is our duty that we must know the yielding criteria, how much shear stress a ductile material can bear. So that's why we are giving you the complete information about the two criteria which deals with the shear stress or shear strain. One is Tresca, which is also known as the maximum shear stress criteria. Second is von Mises, which is also known as maximum shear strain energy criteria. Now, before going to start the criteria, you must know the assumptions. What assumptions we are taking in order to understand this criteria, these criteria. So the first assumption is material should be homogeneous, continuous, and isotropic. So anyone would like to answer what is the meaning of homogeneous? Sir, all the material have same chemical composition, sir. Very nice, Anuj. The chemical composition throughout the volume must be uniform. That is the condition for the homogeneous. Similarly, if we're talking about the continuous component is there, okay, the cross section is uniform. So that is also known as an isotropic. Isotropic means the elastic property does not depend upon the directions. Okay. And one thing more, the shear stress in the same in tension or in compression. What does it mean? The shear stress or yield stress is same in the tension or in compression. What does it mean? Suppose this is a component on which we are going to apply a longitudinal load. lateral strains uniform रहेगा. Okay. Suppose this is a component. Okay, it is a kind of a circular bar, and you are going to apply a load here, compressive load. So by applying a compressive load, what will happen? The material starts showing the yield point. The yielding will occur. So suppose a material is going to apply compressive force like 100 kilonewton, or you can say 100 megapascal. It is showing the yield stress after compression, and you are going to apply a force in pulling nature that is known as the tensile. So the tensile stress is also 100 megapascal, and both points yield point are common for this 100 megapascal. That's why we are saying the yield stress is same in the case of tension or in compression. आप 100 मेगापास्कल लगाने के बाद में इसमें पहला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिख रहा है कंप्रेशन में, और ऐसा ही पुलिंग में हो रहा है. जब आप 100 मेगापास्कल फोर्स लगा रहे हैं तो जो फर्स्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको अपीयर हो रहा है वो 100 मेगापास्कल पे हो रहा है. तो हम कहेंगे कि दोनों का नेचर अलग अलग है. एक हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. क्योंकि कंप्रेशन को हम नेगेटिव स्ट्रेसेस बोलते हैं और टेंसाइल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेसेस बोलते हैं. तो आप, लेकिन नेचर अलग अलग है, पॉइंट एक है. यील्ड पॉइंट आपका 100 मेगापास्कल ही है. तो उसी से तो हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई जहां पर पहला यील्डिंग स्टार्ट हो उसी को हम कहेंगे कि जो स्ट्रेस लगाई जा रही है वो इक्वल है यील्ड स्ट्रेस के. ओके, नेक्स्ट, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनिशिएशन ऑफ यील्डिंग. Anyone would like to answer what is the hydrostatic pressure, hydrostatic stress? No idea?
Have you heard about the bulk modulus? There are three kind of modulus of a material. Three. Do you know? Yes, sir. Bulk modulus divided Sir, by elastic volumetric. modulus, bulk modulus, Young's modulus, sir. दोबारा बोलिए अनुज. Sir, Young's modulus, bulk modulus, elastic modulus. अरे दादा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने दो सही बताए, एक गलत बताया. अरे सर, एक गलत बताया, सॉरी हाँ, सर. यंग्स मॉडुलस और इलास्टिक मॉडुलस दोनों सेम होता है. ठीक है सर. एक रह गया है, बताइए कौन बताएगा? गौरव, आप बताएंगे? कौन सा? Rigidity modulus. Very good, very Rigidity good. modulus. Rigidity. Yes, Okay, sir. modulus of rigidity. So the first modulus is, जिसको हम E बोलते हैं, कैपिटल E. कैपिटल E क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस. ओके. दूसरे का नाम क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और तीसरे का क्या होता है? बल्क मॉडुलस. अब बताइए, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है? आपने कभी जानने की कोशिश की? आप तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर ने जितना बता दिया होगा उतना आप पढ़ के रह जाते हैं. आप लोग खुद भी नहीं पढ़ते हैं. बताइए क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? तीनों में डिफरेंस पता है? कैसे ये आते हैं कांस्टेंट? ये कांस्टेंट ही तो हैं. सर यस सर, बट सर जो नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, तब उसको प्रोपोर्शनल करते थे स्ट्रेन के, तब हमारा सर जो यंग मॉडुलस है तब आता था. ओके, एंड इसी वेरी को सर नाइस. अगर हम शेयर के केस में सर बात करें, देन वहां पर जब हम शेयर स्ट्रेस जो अपना होता था उसको स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रखते थे, वहां से सर जी निकल के आता था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. एंड जो सर इन दोनों का एंड जो सर वो होता था बल्क मॉडुलस, वो होता था सर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक जो अपना Strain. स्ट्रेन होती थी. Very nice, Gaurav. Very nice. यस सर. You are absolutely correct. Direct stress is proportional to direct strain. Direct क्यों बोल रहा हूं? कोई बता सकता है? Direct stress क्या होती है? The stress which are acting perpendicular to the cross section. यस सर. Perpendicular to the cross section. मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके ऐसे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है स्ट्रेसेस, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस. जैसे सिग्मा हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2. आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल में जो चल रहा है मॉड्यूल, उसमें सारी डायरेक्ट स्ट्रेसेस के बारे में कर रहे हैं. अगर आप इसी को टेंजेंशियली लगाएं, ऐसे लगाएं पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन इस तरह से, तो उनको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस. ठीक है. तो अगर हम शियर स्ट्रेस को प्रोपोर्शनल करें, क्योंकि ये हुक्स ने कहा है कि shear stress is directly proportional to the shear strain. So these proportionality constant can be removed by a constant that is known as the capital G. And here we place capital E. And in the third, we have the hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure or stress. Now tell me, and you would like anyone would like to answer, what is the example of this hydrostatic stress or the pressure where you will experience this hydrostatic stress, which is directly proportional to Sir, fluid में sir. Sir, fluid में. Very nice. Volumetric strain. When a body is submerged in the liquid, it experiences the hydrostatic stress. Why it experience the hydrostatic stress? Anyone? क्यों experience करती है? क्यों हम उसको हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं? देखिए, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आपने पास्कल लॉ पढ़ा होगा. पास्कल लॉ पढ़ा है? सर ये सेम होती है सर ऑल डायरेक्शन में. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऐसा ही तो पास्कल लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी वाटर में सबमर्ज है तो वाटर उस पे इक्वल अमाउंट का फोर्स या इक्वल अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. ओके. अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए उसकी एरिया चेंज होगा या लेंथ चेंज होगा या कुछ और चेंज होगा? देखिए, if there is a hydrostatic stress,
the volume will change completely when it is subjected by we can say the equal stresses. मान लीजिए आपके पास में कोई इस तरह का बॉडी है, cuboid kind of, and you are going to apply 3 stresses. ये तो ऐसे तो आप समझते होंगे, ये आप लोग एक्सरसाइज कर भी रहे होंगे. ये कौन सी कंडीशन है? 3 एक्सियल लोडिंग है, 3 एक्सियल. ओके, दिस इज सिग्मा x, sigma x, this is sigma y, this is sigma y, this is sigma z, and this is sigma z. Okay, so what is the condition for the hydrostatic stress? Anyone? For the condition of the hydrostatic stress means sigma x is equals to sigma y is equals to sigma z. So these stresses will be call it as a hydrostatic stress. And with this you will have a volumetric change, or we can say that is known as the volumetric strain, the change in volume divided by the original volume. That's why we always take the volumetric strain in the case of hydrostatic pressure. So in the metal forming case, we are assuming what we are assuming, you can see there is no effect of, or there is no influence of hydrostatic stress on the yielding. Yield point will not suffer by the application of hydrostatic stress. Okay, now we are going to start the first important criteria, that is Tresca's criteria, most awaited. So shall I start? Any? Yeah, sir. Okay, so here you can see, इसको समझना है सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आपको अगर नहीं समझ में आए तो आपको डरना भी नहीं है. क्यों डरना नहीं है बताइए? सर आप दोबारा बता दोगे? आपसे दोबारा समझ लेंगे सर. नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आपको दोबारा वहां पर पढ़ लेंगे हम, पढ़ाया जाएगा. एक्चुअली देखिए, ये जो मेरे को आप लोगों ने ध्यान किया हो, इसकी जो प्री रिक्वायरमेंट है BMEG 006 का, मैन्युफैक्चरिंग साइंस का, कि आपने 3rd सेम कंप्लीट कर लिया होना चाहिए. लेकिन फॉर्चुनेटली, मतलब भाग्यवश, आपको ये 3rd सेम में मिल रही है पढ़ने के लिए. तो इसमें क्या होता है, हम लोग पहले ही अज्यूम करते थे कि आपको सोम पड़ी हुई है. तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग बोलते हैं हाँ सर ये तो हमें आती है, ये सब चीजें आती हैं. मटेरियल साइंस आपको आती है, लेकिन मटेरियल साइंस पैरेलल चल रही है, इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स कभी कभी डिस्क्राइब करने होते हैं. चलिए हम मैं पहले लेकिन आपको यील्ड क्राइटेरिया बता देता हूं कि हमें, लेकिन एक चीज बताइए, अगर यील्ड क्राइटेरिया मेटल फॉर्मिंग में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चाहिए, यील्डिंग चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा. ओके, अब हम बात करते हैं सर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं. थ्योरी इसकी बहुत इजी है सर, डेफिनेशन तो इसकी बहुत इजी है. मैं बोलता हूं डेफिनेशन क्या है. as per the, or according to the Tresca's statement, the yielding will occur in the material. Yielding will occur in the material when the maximum shear stress in a complex system reaches to a shear stress in a simple tensile test or a compression test. अभी तो आपको बड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या बोल दिया इसने, लेकिन बड़ा इजी है. कैसे? देखिए, आपको 2 कंडीशन को कंपेयर करना है. वो कह रहा है कि अगर आपकी शियर स्ट्रेस जो लगी हुई है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, उसको कंपेयर करना है आपको शियर स्ट्रेस के साथ में. ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है. जितनी भी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं, दोनों में हम सेम वैल्यू को कंपेयर करते हैं. जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो उसके लिए 2 केस लेते हैं. कौन सा केस? पहले तो कॉम्प्लेक्स, या इसको हम रियल बोल सकते हैं, रियल या एक्चुअल लोडिंग कंडीशन, एक्चुअल और रियल लोडिंग कंडीशन. और दूसरा होता है सिंपल.
uniaxial loading, simple uniaxial loading in simple compression और टेंशन. ओके, मैंने ऐसे लिख दिया है. ठीक है, समझ जाओगे ना आप लोग. ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है? बताइए क्या लिखा है. सर कंप्रेशन एंड टेंशन. बस तुम्हें ही दिखा है, और किसी को नहीं दिख रहा है क्या ये? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर. हाँ, पूरा लिखा हुआ है मैंने. ओके, कम टू दिस हियर. अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और ये तो मत पूछना मेरे को कि सिंपल यूनिएक्सियल लोडिंग क्या होती है और कॉम्प्लेक्स लोडिंग क्या होती है. कॉम्प्लेक्स लोडिंग में क्या होता है? द बॉडी इज सब्जेक्टेड बाय ए complex system of principal stresses. Okay, so here you can see, suppose this principal stress is sigma 1, this principal stress is sigma 2, this principal stress is sigma 3. Okay, and here we have only a one condition. You can see this is a three-dimensional object of similar dimensions as we have seen in the complex system, but it is subjected by a uniaxial load. Okay, this load is 0 naught, sigma naught. Okay, now we will find out the maximum shear stress of this case and maximum shear stress of this case, and then we will compare. Now you can see here, if this is a condition, sigma 1 is greater than the sigma 2 and which is greater than the sigma 3. Okay, so these are the condition for, we are taking one example. Okay, आपको जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो दे रखा होगा कि सिग्मा 1 की वैल्यू 100 मेगापास्कल है, सिग्मा 2 की वैल्यू 300 मेगापास्कल है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओके व्हिच वन इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड व्हिच वन इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. ओके, but here I am giving the condition sigma 1 is greater than sigma 2, sigma 3. Now, how we can calculate the maximum shear stress? Anyone? How we can calculate? What is the formula of calculating the maximum shear stress? That is also known as the tau max. Tau max is what? अरे बताओ, अगर आपको ये तो पढ़ा दिया होगा सर ने कि tau max कैसे निकालते हैं? यार ये तो गलत बात है आपकी. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. नहीं बताया? नहीं फॉर्मूला याद है? मैं म्यूट हो गया क्या? मेरा तो चल रहा है. हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, बताया तो है सर. अच्छा, आप भूल गए. चलिए कोई बात नहीं. वो सर कुछ ऐसी वो मैं सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 देन सिग्मा एक्स एक्स वाई अपॉन 2 cos चलिए थीटा. वो उस पर भी मैं, वही वाली बात है ना. मान लीजिए मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को ये फिर आप बोलेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग तुमने छोड़ दी है, ये चीजें में घुस रहे हो आप. ठीक है, अब इसके लिए बताइए टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे. टाउ मैक्स फॉर दिस सिंपल टेंसाइल टेस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं ये एस के लिए है और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम सी के लिए है. तो इसके लिए कैसे निकाला जाएगा? यूनिएक्सियल लोडिंग है, तो यूनिएक्सियल के केस में क्या होगा? सिग्मा नॉट माइनस 0, क्योंकि सारे लोड और 0 है, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस वैल्यू विल बी सिग्मा नॉट बाय 2. सो वी विल कंपेयर दीज स्ट्रेसेस. I can write here, you can see, मैं इसको हटा देता हूं. यहाँ पे, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको. So I'm write the condition for the safe design. There are two condition कि yielding, condition of yielding, कि yielding होगी या नहीं होगी, उसका हम लोग yielding criteria अब हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों के लिए shear stress निकाल लिया, क्योंकि इसका नाम ही यही है कि maximum shear stress reaches a critical value or a value at the simple tensile test. तो मैंने दोनों के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं. देखिए कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ दिस वैल्यू और इक्वल्स टू.
sigma naught by 2, then the yielding will occur in the material. Is it clear? This is the condition for the yielding. अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो स्ट्रेसेस हैं वो इस वैल्यू के, जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट के बराबर हो जा रहा है, then we can say the material will fail at the yield point. सर ये वाली बात देखा, दोबारा बोल देंगे सर, नेट चला गया था सर। सर ये हम दोबारा। कैसे कह सकते हैं कि सर इक्वल और ग्रेटर देन होगा? देखिए आपको पता है ये दो जगह हो रहा है काम। एक तो मान लीजिए आपने कोई एक बाइक का कोई कंपोनेंट ले लीजिए, उस बाइक के कंपोनेंट पे आपको पता है कि कितने लोड काम कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कहोगे कि सर हमें नहीं पता है, कैसे कैसे निकालेंगे, ऐसा बोलोगे? अरे बोलो नमन, आपको पता है बाइक के हर कंपोनेंट पे लोड आप निकाल सकते हो? यस सर। आप अगर एक डिजाइन इंजीनियर हैं तो उसमें पहले ही यस सर, निकाल लेंगे। हाँ, उस पे पहले ही स्पेसिफिकेशन लिखे जाते हैं। या कोई भी कंपोनेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई चेयर भी बना रहे हैं, चेयर के कुछ पार्ट हैं, जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, मान लीजिए उसकी एक लिमिट होती है ना कि भाई हम इस पे 200 ग्राम का आदमी, 200 किलोग्राम का आदमी बिठा सकते हैं, 2 कुंटल का आदमी या 3 कुंटल का आदमी, उससे ज्यादा होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं, उसकी लिमिट हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो अपना सेफ्टी पॉइंट लेके लिख देती है। हाँ, अब वही चीज कि एक तो हमने क्या किया, वो उस पे एक्चुअल लोड जो लग रहा है, और मैंने जो यूटीएम पे काम किया था। यूटीएम किस पे काम करता है पहले ही तो ये बताओ, यूनी एक्सियल पे काम करता है या बाई एक्सियल पे या ट्राई एक्सियल पे? सर बाई पे। अरे दादा, सर वो टेंसाइल फोर्स करता ना, वहाँ तो टेंसाइल और कंप्रेशन। अरे तो बाई एक्सियल होता है, यूनी एक्सियल होता है, या यूनी हो गया सर, फिर तो वो एक ही साइड में काम कर सर रहा मेरा है। क्लास चल रहा है अभी। ये बताओ रे, यूनी होगा ना? यूनी होगा, यूनी। यस सर, यस सर। टेंसाइल लोडिंग तो सिंपल ऐसे होता है ना, आपने सर वो या हैंग किया तो और ऐसे स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस बस, करेंगे। तो वो यूनी एक्सियल लोडिंग हुआ। तो जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, लेबोरेटरी में इस कंपोनेंट की टेस्ट, मान लीजिए एक यूनी एक्सियल लोडिंग पे जितनी स्ट्रेंथ आ रही है उसको हम कंपेयर करेंगे जब वो मल्टीपल स्ट्रेसेस में काम कर रहा है। या अब उस वैल्यू को कंपैरिजन कराते हैं कि भाई यूनी एक्सियल में इतना आया था और अब फिलहाल में इतना लोड लग रहा है, तो यील्डिंग होने वाली है या यील्डिंग हो सकती है। हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसमें एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। तो ये कैलकुलेशन, ये इसको बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर जो स्ट्रेस हमें यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग में मिल रही है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मिल रही है, अगर वो वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जो एक्चुअल में लग रही है वो ज्यादा हो जाएगी, जो हमारी लेबोरेटरी में जो काउंटिंग हुई है, लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग हुई है, तो फेलियर होगा, यील्डिंग विल अकर इन द मटेरियल। यहां तक कोई इशू हो तो पूछिए। सॉरी, बोलिए। अभी तो एकदम शांत हो गए हैं सब लोग, होते ही नहीं। अनुज आया बोलिए। सर, यहाँ तक तो आया सर समझ में। और लोग बोलिए। अमन भारद्वाज जी, नंदी कहाँ सर? बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बस अटेंडेंस मिला, बोले भाई यार हम वेट कर रहे हैं 30 मिनट हो जाए छोड़ के, पकड़ रही है। पता नहीं वो लोग किस लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या तो जबरदस्ती पापा का बम्बू है कि बस उन्होंने बोल रखा है इसलिए बस करना है, ऐसा है क्या? बस पैसे पैसे, वो लोग नहीं सुनते हैं। जैसे मान लीजिए उनको चाहे कितना भी क्रिटिकल टॉपिक चल रहा हो, उनको 35 मिनट हुआ या जो भी अटेंडेंस का टाइम तुम लोगों को पता होगा, बाहर में जाए दुनियादारी, अपना एग्जिट मारा और कुछ भी चल रहा हो। कहावत है सर, एक खेल नहीं है बच्चों का और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। हाँ ये बात तो है, फिर यही होगा मुझे लग रहा है रीजन, क्योंकि अच्छे अच्छे होंगे नहीं, या तो फिर वो लोग भाग जाते होंगे। चलिए कोई बात नहीं,
आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। मैं ये बताइए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सारी ड्राइंग जितनी भी है। कोई डाउट हो? मुझे सर पता वो है आपने काफी। बताया था सर, अभी तो सर नेट चला गया था सर, मैंने आपसे बताया था सर, वो बता दो एक बार फिर से सर। बताया तो दोबारा से, यही तो बताया, यही तो है कि चलिए ठीक है सर। यही मेन है बस, और कुछ नहीं याद करने का जरूरत है आपको। ये कैसे निकाला ये तो नहीं पूछ रहे हो? सिग्मा वन, नहीं सर। ये तो आता होगा ना, ये फॉर्मूला होता है। हाँ फॉर्मूला सर ये क्या तो होता है। है? हाँ, मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। और अब हम लोग देखो पीपीटी पे जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा है स्टेटमेंट। ट्रेस्कास suggested that the plastic flow initiates when the maximum shear stress reaches a limiting value. Limiting value means reaches a shear stress, you can say. Okay, just wait, where is my notation? Yes, here limiting value, sometimes this is also known as the limiting value. अब limiting value क्या है? क्योंकि ये लिमिट बताता है, इसीलिए हम इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बताइए नाम क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट। ओके, अब देखिए, मान लीजिए इसने बोला है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3, सो द टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। मान लीजिए इसमें दो ही लोड दे रखे होते या बाई एक्सियल लोडिंग होती, ठीक है? आप लोग बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल तो बहुत अच्छे से बता रहे थे अभी, तो सभी को पता है इसका मतलब। तो बताइए, दो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो ही लोड होते, ठीक है? और ये मान लीजिए इस तरह का क्राइटेरिया है इसमें, तो क्या स्ट्रेस होती? मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालते? उसके लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ओके, उसमें माइनर क्या होती? उसमें माइनर सिग्मा 2 होता, ठीक है? अब प्लास्टिक फ्लो डिफॉर्मेशन अकर्स व्हेन दिस वैल्यू टाउ मैक्स रीचेस और इक्वल्स टू दिस वैल्यू के, इसके बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए। सोचो कि बराबर के लिए ही उसने बता दिया क्राइटेरिया, तो ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है वो तो फेलियर होगा ही होगा, ठीक है? तो उसने तो और सेफ साइड लेके चल रहा है कि भैया अगर बराबर भी हो गई इसके तो ही फेलियर हो जाएगा। अब के की वैल्यू उसने देखो कैसे निकाली है। के की वैल्यू देखिए, के इज इक्वल्स टू अब 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। के की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिग्मा नॉट बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या कंडीशन बचेगी? सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। इसका क्या मतलब निकल के आया? द यील्डिंग इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, okay, sorry, sigma 3, and it is not the function of sigma 2। कौन कंक्लूड करेगा इसको? What is the final conclusion of this Tresca's criteria? The yielding of the material depends upon the maximum stress applied and the minimum stress applied. It does not depend upon the intermediate stresses. जो फेलियर होता है किसी भी मटेरियल में वो दो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है साहब। एक तो जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेस काम कर रही है और एक जो सबसे मिनिमम काम कर रही है। मान लीजिए आपकी बॉडी में 600 से लेके 100 मेगापास्कल तक लोडिंग कंडीशन है, 600, 500, 6 और भी बहुत सारे लोडिंग कंडीशन है। So the yielding, or we can say the failure of the material, will depend upon the maximum one and the minimum one. Is it clear? सर जैसे सर अभी सर उसमें स्टेटमेंट ने लिखा है सर ऊपर की सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे सर प्लास्टिक फ्लो इनिशिएट होगा सर। बिल्कुल, तो सर हम मिनिमम से मतलब क्या है सर? अब वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा सर। मैक्सिमम बोल रहा है ना। हाँ सर, तो सर मिनिमम पे सर हमें को तो कोई मतलब है नहीं है सर, मिनिमम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा।
नहीं नहीं यार, वो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए कैसे निकालते हो? यही तो बात है ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं है। मैक्सिमम अच्छा शियर सर। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त अनुज? ये होता है फॉर्मूला, ये सिग्मा मैक्सिमम जिसको मेजर बोलते हैं, और सिग्मा मिनिमम बाई 2, और बीच में क्या चल रहा है वो सब नहीं लेना है मेरे को। टाउ मैक्स निकालने के लिए कौन सी स्ट्रेस यूज हो रही है? एक तो मेजर यूज हो रही है, एक माइनर यूज हो तो रही है। मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा यस सर। हूँ कि जो फेलियर हम, क्योंकि हम टाउ मैक्स को नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया फेलियर जो है, यील्डिंग जो है, वो दो स्ट्रेस पे ही डिपेंड करता है, एक तो मेजर वाली और एक माइनर वाली। और इसीलिए इसमें लिखा भी है, लास्ट लाइन देखेंगे कि नॉट द फंक्शन ऑफ सिग्मा 2। जो इंटरमीडिएट स्ट्रेस थी इसमें, जो हमने केस लिया था, क्योंकि इंटरमीडिएट स्ट्रेस ये है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो हमने केवल दो ही लिया है ना, ये तो लिया ही नहीं फेलियर निकालने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Tresca's criteria. Now you can see the next type, that is von Mises criteria. von Mises criteria देखते हैं। von Mises दूसरा नाम क्या है इसका बताइए? मैक्सिमम। ये तो देखो इनके साइंटिस्ट के नाम होते हैं, von Mises, और ये इसकी एक्चुअल में जो हमें कैलकुलेट करना है वो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सर कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया होता क्या है। पहले तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है? सर मेजर प्लस माइनर बाई 2। नो, वो तो शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेन एनर्जी है। शियर स्ट्रेन एनर्जी, ये आपको अभी अवधेश से ड्राइव करवाएंगे इसका फॉर्मूला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी लिख रहा हूं यहां पे। ये फॉर्मूला आता है 1/12 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है in order to understand this von Mises criteria. This formula will be derived by your strength of material teacher. Okay, so ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब देखिए आप, ये किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं कि इसमें कितनी स्ट्रेस काम कर रही है? 3 स्ट्रेस काम कर रही है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। सो दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब बताइए यूनिएक्सियल में कितना होगा? यूनिएक्सियल के केस में, क्योंकि हमें तो किससे कंपेयर कराना है? किससे कंपेयर कराना है बताइए? यूनिएक्सियल से। सो यूनिएक्सियल से कैसे निकालेंगे? 1/12 जी। अब इसको सिग्मा नॉट अनुराग, सर, सिग्मा नॉट माइनस 0 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखिए क्या होगा, देखो सिग्मा नॉट यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे इस केस में, यूनिएक्सियल के केस में सिग्मा 1 तो हमारा सिग्मा नॉट के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि यूनिएक्सियल में तो एक ही स्ट्रेस काम करती है ना, एक ही एक्सिस पे। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। सो सिग्मा 1 जहां जहां पे है वहां पे आप सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो द सिग्मा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे क्या निकल के आएगा बताइए? इस टर्म से सब जीरो हो जाएंगे सर, बस इस टर्म से क्या निकल के आएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 1। हाँ, सिग्मा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला निकल के आया है बताइए? 1 सॉरी सिग्मा नॉट स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा नॉट स्क्वायर बाई 6। ओके, अब इसको कंपेयर कराना है आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ में। बस इक्वेट करके वैल्यू लिखिए
और आपको मिल जाएगा फाइनल रिलेशनशिप। यहां तक समझ में आया है? बताइए। यस सर। और लोग बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है। अभी सैली है? यस सर। क्या हुआ, गला खराब है क्या? मैनेजर साहब को बोलूं? गला खराब है बेटा? विक्स की गोली नो खाओ। सर, थोड़ी खराश है। ओके ओके, चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और फिर हम इसको देखते हैं कि फाइनल क्या हमें आउटकम मिलता है। ठीक है, clear all drawing? Okay, so now tell me how we will compare. The first formula क्या था? 1/12। ये किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स के लिए। ये शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का, ओ सॉरी ये नहीं होगा, ओके, होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। इफ इट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दूसरा वैल्यू अभी कितना आया था? सिग्मा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द यील्डिंग। ये बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे, कोई डिजाइन इंजीनियर आपसे पूछे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कि सेफ डिजाइन क्या होगी, तो सेफ डिजाइन के लिए क्या करना होगा बताइए? ये तो यील्डिंग का कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे? इस सिंबल को चेंज कर देंगे। इस सिंबल को इधर न करके अगर आप इधर कर दोगे तो क्या कहा जाएगा कि ये भैया ये जो वैल्यू है ये अगर हमेशा कम होगी इस वैल्यू से तो कभी भी फेलियर नहीं होगा आपके मटेरियल में। तो उसी के हिसाब से वो लोड कैलकुलेट करता है और अपने कंपोनेंट की थिकनेस और साइज डिजाइन करता है। ये बात समझ में आई? इफ दिस वैल्यू, the stresses in the complex, or we can say the maximum shear strain energy in a complex system is less than the maximum shear strain energy in a uniaxial system, then we can say there will be a safe design, okay, as per the von Mises criteria. Is it clear? So now what we can simplify, अगर हम लोग मान लीजिए और सेफर कंडीशन ले रहे हैं तो यहां पर हम इक्वल्स टू का निशान लगा रहे हैं, तो 1/12, तो यहां से देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और 2 को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बताइए? फाइनल फॉर्मूला बताइए इक्वल्स टू के टर्म्स में। बोलते नहीं है आप लोग बस। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा नॉट होल स्क्वायर। 2 सिग्मा नॉट। ये फाइनल फॉर्मूला है वॉन मिसेस क्राइटेरिया का। याद रहेगा सभी को? यस सर। अगर मान लीजिए अगर बाई एक्सेल लोडिंग है, बाई एक्सेल लोडिंग है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई एक्सियल के केस में? 0. Okay, sigma 3 will be 0 in the case of biaxial. So what will be the final formula? Sigma 1, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे हमेशा biaxial के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर। हाँ, सिग्मा 1 को हम रखेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ये तो 0 है, स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा नॉट। कबूतर। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना सभी को?
Yes, sir. So this is the final formula for the biaxial loading condition. Okay, so let's see some numericals. Yes, I know time is over, so we'll see in the next class, and we will solve some numerical based on these formula. Okay, so till then, Okay, sir. good day and have a nice time. Thank you. If you have Radhe any Radhe, query, sir. you can ask. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Anyone, please, if you have any doubt and any questions, so you may ask. No questions. ठीक है, bye.